So hello everyone, now in this video I'm going to start a new chapter, continuity and differentiability from your book ML Agarwal. Okay, so what is a continuous function? So a function is continuous at suppose x equal to c a point. So a function is continuous at x equal to c if and only if it is both left as well as right continuous. Remember this one, okay? Both left and as well as right continuous at x equal to c. That means here limit x tends to c minus, that is left continuous, fx is equal to limit x tends to c plus, that means right continuous, and that one equal to fc. Okay, if the condition is satisfied, then we call this one a continuous function. So here the first problem from the exercise 5.1 from your book. Here some number 1 examine the following function for continuity at the indicated points. So here the fx, the function, is x cube plus 3 when x not equal to 0 and 1 when x equal to 0 at x equal to 0. Okay, so examine the following function for the continuity. Now as here x not equal to 0, okay, x not equal to 0 means x might be greater than 0 or x might be less than 0. So for limit x tends to 0 plus, for limit x tends to 0 plus fx, this one x tends to 0 plus, that means 0 के ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा नेबरहुड में. सो हियर एक्स क्यूब प्लस 3 फंक्शन हो जाएगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 फॉर दिस वन. सो हियर यू कैन राइट डाउन लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस h होल क्यूब प्लस 3. अब h टेंड्स टू 0 मीन्स 0 प्लस 0, so it's 0, so that one equal to 3. Now for next one, limit x tends to 0 minus, ओके 0 माइनस एफ एक्स, इसका मतलब 0 से थोड़ा कम. अब थोड़ा कम हो जाएगा तब भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सो इसके लिए भी फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3. सो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर होगा 0 माइनस एच होल क्यूब प्लस 3 एज एच टेंस टू 0, सो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, सो यहाँ पर 3. ओके, नाउ फॉर द f0, okay, अब f0 that means x equal to 0. For x equal to 0 the value equal to 1, it's given. So that means यहाँ पर देखिए limit x tends to 0, limit x tends to 0 plus fx is equal to limit x tends to 0 minus fx, but is does not equal to with f0. okay, अगर continuous function होता तो तीनों ही equal आता. यहाँ पर दो इक्वल है बट एफ इज 0 यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एफ इज नॉट कंटिन्यूअस. ओके, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. ओके, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस at x equal to 0. Now the next one, sum number 1 part 2. In part 2 here fx equal to x cube plus 2x square minus 1 at x equal to 1. इसका मतलब x equal to 1 में हमें चेक करना है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस. सो फॉर f1 मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालना है. f1 1 क्यूब then 2 into 1 square minus 1, so that one equal to 2. Now for limit x tends to 1, x tends to 1 fx. Okay, so limit x tends to 1, x cube plus 2x square minus 1. So limit x tends to x cube के लिए यहाँ पर 1 cube, so 1 फिर 2 फिर minus 1, that one equal to 2. So limit x tends to 1 fx is equal to with f1. So fx is continuous. Okay, fx is continuous when at x equal to 1.
Now next, sum number 2. Prove the function f(x) equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3, at x equal to 5. तीनों पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर चेक करना होगा। पहले हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे। अब x इक्वल टू 0 के लिए हम 0 प्लस भी चेक करेंगे, 0 माइनस भी चेक करेंगे। ओके, पहले यहाँ पर लिखते हैं कि x टेंड्स टू 0 माइनस। ओके, if टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x माइनस 3। फिर m लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे 0 माइनस h। ओके, 0 माइनस h माइनस 3। जब भी आपके पास यहाँ पर 0 माइनस होगा, 0 माइनस h लिखेंगे जब h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 माइनस आया तो 1 माइनस h, अगर 2 माइनस है 2 माइनस h, 3 माइनस है 3 माइनस h। जब भी यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1 प्लस, 1 प्लस h, 2 प्लस 2 प्लस h, इस तरह से आपको चेंज करना होगा। ओके, अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0, दैट मीन्स 5 इंटू 0, सो माइनस 3 यहाँ पर आपका वैल्यू होगा। नाउ फॉर नेक्स्ट वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर भी 5x माइनस 3 होगा। अब यहाँ पर प्लस है, सो h टेंड्स टू 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस h। ओके, सो दैट वन इक्वल टू ऑल्सो माइनस 3। अब हम यहाँ पर f इक्वल टू x 0, सो 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट वन इक्वल टू ऑल्सो माइनस 3। इसका मतलब तीनों का ही वैल्यू यहाँ पर सेम आ जाएगा। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, उसका भी वैल्यू माइनस 3 और f0 भी माइनस 3। सो दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, इस तरह से हम माइनस 3 के लिए भी चेक करेंगे। अब माइनस 3 के लिए भी यहाँ पर एक माइनस 3 प्लस होगा और दूसरा माइनस 3 माइनस होगा। चलिए चेक करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 माइनस fx, सो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 5x माइनस 3, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x और x की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 माइनस h। मैंने पहले ही बोल दिया था जो वैल्यू आपके पास रहेगा अगर h में कन्वर्ट होगा सो माइनस h वहां पर लिखेंगे, फिर माइनस 3। अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, सो यहाँ पर माइनस 3 रह जाएगा। 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3, दैट वन इक्वल टू माइनस 18। चलिए अब लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस fx, सो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, अब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 3 प्लस h माइनस 3, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, सो अगेन माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18। ओके, अब f माइनस 3 का वैल्यू चेक करेंगे। 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, यहाँ पर भी माइनस 18। इसका मतलब यहाँ पर भी तीनों वैल्यू सेम आ गया, सो माइनस 3 में भी यहाँ पर भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस। अब 5 के लिए चेक करेंगे, और 5 के लिए चेक करने के बाद भी यहाँ पर देखिए आपका सेम आंसर ही आ जाएगा। ओके, तीनों आंसर ही सेम आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं सम नंबर 3 में। सो हियर इन सम नंबर 3, if fx equal to x square minus 1 divided by x minus 1 for x not equal to 1, and if x equal to 2 when x equal to 1, then show that the function is continuous at x equal to 1। ओके, x equal to 1 में आपको continuous दिखाना है यहाँ पर। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सो fx, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सो लिमिट यहाँ पर हम करेंगे h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे 1 माइनस h माइनस 1। ओके, सो अब लिमिट यहाँ पर 1 माइनस h का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0,
सो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर 1 कैसे माइनस h. So now that one equal to here 1 1 cancel out. So limit h tends to 0. ऊपर में यहाँ पर h square minus 2h. If h common, so it become h minus 2 divided by minus h. So h cancel out. Limit h tends to 2. यहाँ पर h minus 2 by minus h. Now if h equal to 0, so that one equal to minus 2. Okay, minus 2 by minus, so that one equal to plus 2. So plus 2, that is your answer. That means for the left continuous the value is equal to plus 2. Now for the next one right continuous के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे limit x tends to 1 plus fx. So limit x tends to 1 plus x square minus 1 divided by x minus 1. Okay, x square minus 1 divided by x minus 1. Limit h tends to 0, 1 plus h whole square minus 1, 1 plus h minus 1. 1 1 cancel out. So limit h tends to 0, 1 plus 2h plus h square minus 1 by h. Again 1 1 cancel out. So limit h tends to 0. If h common, so h plus 2 by h cancel out, and here your answer is 2. Okay, so for the left continuous your answer is 2, for the right continuous your answer is 2. Okay, and again fx equal to 2. Okay, so that means all the values are equal, so definitely fx is continuous at x equal to 1. Okay, fx is continuous at x equal to 1. Now the next one, sum number 3 2, the next part. A function f is defined as, here the fx. So here fx is x square minus x minus 6 divided by x minus 3 when x not equal to 3. Okay, when x not equal to 3, and 5 when x equal to 3, so that the function is continuous at x equal to 3. So पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस के लिए. ओके, सो लेफ्ट कंटिन्यूअस एफ एक्स के लिए यहाँ पर चेक करेंगे. मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ h टेंस टू 0. इसका मतलब जहां पर x लिखा होगा वहां पर हम 3 माइनस h लिखेंगे. ओके, 3 माइनस h माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h माइनस 3. ओके, सो 3 3 कैंसिल आउट हो गया. लिमिट h टेंस टू 0. यहाँ पर 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3. ओके, सो यहाँ पर 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0. यहाँ पर h स्क्वायर माइनस 5h बाई माइनस h. So limit h tends to 0. If h common, it becomes h minus 5 by minus h. H is cancel out. So here your answer is positive 5. Okay. Now right continuous के लिए हम चेक करेंगे limit x tends to 3 plus fx and that one equal to limit h tends to 0. यहाँ पर हम लिखेंगे 3 plus h whole square, then 3 plus h minus 6 divided by 3 plus h minus 3. 3 3 cancel out. यहाँ पर भी आपका वैल्यू पॉजिटिव 5 ही आएगा. ओके, और fx when x equal to 3 तब आपका वैल्यू 5 दिया हुआ है. इसका मतलब तीनों का ही वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 5. So definitely this function is also continuous at x equal to 3. Okay, now let's move on to the next problem, sum number 4. Is the function defined by fx? Okay, is the function defined by fx x if x less than equal to 1 and 5 if x greater than 1, continuous at x equal to 0, number 2 at x equal to 1, number 3 at x equal to 2. तीनों पॉइंट में आपको यहाँ पर चेक करना होगा. सो पहले x इक्वल टू 0 के लिए हम चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx. अब 0 प्लस का मतलब होता है
0 से ज्यादा। ओके, सो 1 फाइल है यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब x लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पर भी 0 से ज्यादा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ पर 5 होगा। अब 1 0 से ज्यादा मतलब लेस देन इक्वल टू 1, सो यहाँ पर हम x लिखेंगे। सो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x होगा एंड दैट वन इक्वल टू 0। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, यहाँ पर भी फंक्शन x ही होगा क्योंकि यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 1 में लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस, यहाँ पर भी x एंड दैट इक्वल टू ऑल्सो 0। ओके, नाउ f0 का वैल्यू भी 0 होगा क्योंकि तब भी फंक्शन x यहाँ पर होगा, क्योंकि 0 का मतलब होता है x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर भी लाई कर रहे हैं। सो तीनों का आंसर 0 आ जाएगा। सो 0 के लिए कंटिन्यूअस। ओके, अब 1 के लिए अपन देखेंगे, 1 के लिए x टेंस टू 1 प्लस। ओके, x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब होता है 1 से ज्यादा। ओके, एज x ग्रेटर देन 1 उसके लिए यहाँ पर 5 होगा। सो दैट वन इक्वल टू 5। नाउ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब 1 माइनस के लेस देन 1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x आ जाएगा। ओके, फंक्शन यहाँ पर x दिया हुआ है। अब x यहाँ पर हो जाएगा, सो x इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, दैट वन इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx is not equal to limit x tends to 1 minus fx. Okay, so f is not continuous at x equal to 1. That means discontinuous. For the second one, this one discontinuous. अब x equal to 2 के लिए हम चेक करेंगे। Okay, so limit x tends to 2 plus fx। 2 प्लस का मतलब होता है x ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब 2 माइनस 2 से थोड़ा कम तब भी x ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन 1 तब भी 5, और fx, अब x की जगह अगर 2 हो जाएगा तो f2 इसका वैल्यू यहाँ पर भी 5 ही आ जाएगा। ओके, सो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूअस होगा। So first one and the third one continuous, but the second one is discontinuous. Okay, now next one, sum number 5. This is the last one for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So here in the function f is defined by fx, where 3x plus 5 if x greater than equal to 2, और x square where x less than 2। कंटिन्यूअस x इक्वल टू 2 में आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। ओके, सो लेट लिमिट 2 प्लस fx। अब 2 प्लस fx, ओके, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ा ज्यादा। अब 2 से थोड़ा ज्यादा मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो इसके लिए फंक्शन क्या है, 3x प्लस 5। सो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पर फंक्शन होगा 3x प्लस 5। इज इट क्लियर? अब 2 प्लस के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 5। ओके, दैट मीन्स 6 प्लस 5 एंड दैट वन इक्वल टू 11। ओके, 6 प्लस 5 दैट इक्वल टू 11। अब चेक करेंगे यहाँ पर लेफ्ट कंटिन्यूअस 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस एफ एक्स के लिए यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4। इसका मतलब दोनों नॉट इक्वल। ओके, लिमिट 2 प्लस x tends to 2 plus fx is not equal to limit x tends to 2 minus fx. So f is not continuous at 2. So आपका आंसर आ जाएगा discontinuous.